ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਰਦਾਰ ਚਿਹਰਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? पंजाब का बेटा पंजाब का मुख्यमंत्री बनेगा। ਕੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮਝੀਏ? कि पंजाब का बेटा ही पंजाब का मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि सोम प्रकाश जी पंजाब के बेटे हैं। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਜੋ ਯੂ ਟਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ? मैं इसके लिए पंजाब को सैल्यूट करता हूँ और पंजाबियों को भी सैल्यूट करता हूँ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੁਫਤ ਦੇ ਬੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ 'ਚ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ? ਮੁਫਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇਕਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਕਿੰਜ ਕਰ ਲੇਗੀ? मैं आपकी बात से जो असहमति व्यक्त करना चाहता हूँ। ਸੈਂਟਰ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਖੋਲੇ ਨੇ। ये दर्द पंजाब में इन पॉलिटिकल पार्टियों को ही क्यों है? ये कांग्रेस के लोग, इनके लिए राजनीति सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब के बार पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है। ਕਦੇ 2-3 ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ 2-3 ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਨਾਲ ਪੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ? और मैं आज जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि पंजाब में भविष्य अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। मैंने आम आदमी पार्टी को अपने सामने खड़ा पाता हूँ, न कांग्रेस को पाता हूँ, न अकाली दल को पाता हूँ। रोजगार व बेरोजगार पंजाब, आज नशे से जूझता हुआ पंजाब, आज भ्रष्टाचार माफिया इन सबसे जूझता हुआ पंजाब। और मुझे लगता है कि अब पंजाब की वर्तमान सरकार पे तो कमेंट करने के लिए भी कुछ शब्द नहीं बचे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਸੋ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਖੜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ? देखिए 1990 के दशक से भारतीय जनता पार्टी और अकाली गठबंधन में थे। भारतीय जनता पार्टी के उस समय के नेतृत्व ने
ये जानते हुए भी कि उस समय भारतीय जनता पार्टी, उस समय भी अकाली दल से बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, जी पंजाब में सोशल हार्मनी का फैब्रिक जो है, जो आतंकवाद के समय में कहीं कुछ डिस्टर्ब हुआ था, वो इंटैक्ट बना रहे, इसलिए ये गठबंधन किया था। हम 23 सीट में चुनाव लड़ते थे, कमोबेश कभी 23, कभी 25, कभी जी। जो है ऐसे, और अकाली दल मेजर पार्टनर थी, हम छोटे भाई के तरह साथ में थे। हमने उस रिश्ते को निभाने में कहीं कोई कसर नहीं रखी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे समय में जब पार्टी को जरूरत थी, तब अकाली दल ने हमें छोड़ करके अलग जाने का, अलग होने का रास्ता अख्तियार किया। निश्चित ही बीच का 1 साल का कालखंड, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां पंजाब में थी, वो निश्चित ही बड़ा चुनौतीपूर्ण था, संकटपूर्ण भी था। जी लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के उस बड़े फैसले कि गुरुपर्व के दिन उन्होंने टेलीविजन पर आकर के ये कहा कि मेरे कानून जो हैं वो दिए की रोशनी की तरह पवित्र थे, लेकिन फिर भी क्योंकि शायद कहीं कमी हम में रह गई कि हम लोगों को नहीं समझा पाए, मैं नहीं समझा पाया, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। इन बड़े शब्दों के साथ में पंजाब में जो सीमावर्ती प्रदेश भी है, सेंसिटिव प्रदेश भी है, उसमें किसी तरह के संकट आने वाले समय में पैदा न हो, समाज में एक रूपता बनी रहे, इसके लिए इतना बड़ा फैसला किया। उस दिन के हालात अगर भारतीय जनता पार्टी के देखूं तो उस समय की परिस्थितियां निश्चित रूप से हमारे लिए चिंताजनक भी थी, लेकिन आज 1 महीना और कुछ दिन भी हुए हैं, आज भारतीय जनता पार्टी को लेकर के ये राय न केवल हमारी बदली है, हम में तो आत्मविश्वास जागा ही है। आज पंजाब का हर एक व्यक्ति जो पंजाब की राजनीति की समीक्षा करता है, हर संस्थान, हर जो है वो मीडिया हाउस अब भारतीय जनता पार्टी को एक सिग्निफिकेंस जो है पार्टी के रूप में मानने लगा है, और ये स्वीकार करने लगा है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी भी अकेले दम पर जो चुनाव लड़ रही है, अपने गठबंधन के साथ में, जो वर्तमान में गठबंधन है उसके साथ में जो चुनाव लड़ रही है, वो इतिहास बना सकती है। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਉਭਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। देखिए, ये नैरेटिव जो बनाया गया कि भाजपा का ग्रामीण क्षेत्र में, पिंडू क्षेत्र में जो है भाजपा के ऊपर विश्वास की कमी है, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। देश का किसान निश्चित रूप से इस बात को जानता है कि कृषि क्षेत्र के और किसान के हित में अगर किसी एक सरकार ने पिछले दशकों में फैसले किए हैं, प्रभावी फैसले किए हैं और हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ में काम किया है, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आज ही नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं जो है वो किश्त जारी की है। देश के 10 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपए सीधे गए हैं। कृषि क्षेत्र के सामने जितनी चुनौतियां हैं देश में, उन चुनौतियों के समाधान के लिए जो आयोग बना था, स्वामीनाथन आयोग, जिसकी चर्चा देश का किसान और किसान के क्षेत्र में काम करने वाला हर संगठन करता है, बिल्कुल। स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जिन विषयों की चर्चा की थी, भूमि सुधार से लेकर के फ्री क्रेडिट फ्लो हो, एग्रीकल्चर का रोबस्ट इंश्योरेंस सिस्टम आए, ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ इनकम को के वर्टिकल्स को स्ट्रेंथन किया जाए, उनको मजबूत किया जाए, सिंचाई का रकबा बढ़े, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरेटिवली दुरुस्त हो, पोस्ट प्रोसेसिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग की कैपेसिटीज को स्ट्रेंथन किया जाए। ऐसे कुल मिलाकर के जो 10 उन्होंने वर्टिकल्स पे अपने सुझाव दिए थे,
ये मैं नहीं कहता, स्वामीनाथन साहब खुद कहते हैं कि उन 10 वर्टिकल्स पर अगर किसी एक पार्टी ने सबसे ज़्यादा काम किया और एक सरकार ने सबसे ज़्यादा काम किया, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इसलिए देश का किसान अगर किसी एक से, हो सकता है नाराज़गी जो क्रिएट की गई थी वो थी, लेकिन आशा भी अगर किसी एक सरकार से करता है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी से करता है। इसलिए हालात बहुत तेज़ी के साथ में बदले हैं, एक्सेप्टेंस बनी है, और मैं ये मानता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को जब माननीय नरेंद्र मोदी जी की सभा होगी, उस सभा के साथ में ये सारे जो चिंताएं जो आज आप कर रहे हैं, आशंकाएं, ये ध्वस्त हो जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी एक नया इतिहास बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, ये स्वतः स्थापित हो जाएगा। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ 2-3 ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ 2-3 ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਨਾਲ ਪੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? देखिए, वजह स्पष्ट है। कोई राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति जो वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है, 3 बार 4 बार 5 बार विधायक रहा है, मंत्री के ओहदे पर काम किया है, और ऐसे महत्वपूर्ण पद पर रहा हुआ व्यक्ति अगर छोड़ करके भी जो है किसी नए दल में जाने की बात करता है, तो निश्चित ही वो बहुत सोच समझ करके ऐसा फैसला करता होगा, उसको भविष्य वहां दिखाई देता है। और मैं आज जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि पंजाब में भविष्य अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी का है। ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਮੋਦੀ ਵੇਵ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੱਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਓਗੇ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? देखिए, मैं ऐलान की बात तो नहीं करूंगा, सस्पेंस लेकिन रखोगे? जो तय कार्यक्रम है, फिरोजपुर में पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर बनने वाला है, उसका फाउंडेशन स्टोन ले हो रहा है। इसके अलावा 2 और मेडिकल कॉलेज होशियारपुर कपूरथला का भी के बारे में भी चर्चा होगी, और पंजाब में नए रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में भी चर्चा होगी, डबलिंग के प्रोजेक्ट के बारे में भी चर्चा होगी, रोड के नए जो हैं प्रोजेक्ट हैं नेशनल हाईवे के, उनके बारे में भी चर्चा होगी, और बहुत सारे विषयों पर चर्चा होगी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਜੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਪਊਗਾ? देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा तय हुआ था, तब शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ये जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, ये पंजाब के पिछले कुछ दशकों के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी पॉलिटिकल रैली होने वाली है। पंजाब के हर प्रदेश के, हर जिले के, हर एक मंडल के, हर एक गांव से अगर बस में लोग भर के आने के लिए आतुर हैं। हमने जो कल्पना की थी और जो व्यवस्थाएं की थी वो ध्वस्त हो गई हैं, उससे दुगनी बसों की आवश्यकता, डिमांड आज मेरे पास में है। पंजाब में बस मुझे ढूंढे नहीं मिल रही है, इसलिए ये जो प्रधानमंत्री जी की पॉलिटिकल रैली जो है, ये पंजाब में एक नया इतिहास और नई कीर्तिमान बनाएगी, एक नई लकीर खींचने वाली है। उस लकीर को छोटा करने के लिए पंजाब की दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਵਤ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਦੇ ਆ? सत्ताधारी कांग्रेस? मुझे लगता है कि जिन परिस्थितियों में, जिन हालात में हमने चुनाव का काम करना शुरू किया था, आप इन्हें अभी चर्चा की कि जिस तरह के हालात थे पिछले 1-1.5 साल से, पहले तो हम क्योंकि सीमित क्षेत्र में ही हम चुनाव लड़ते थे, इसलिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी उस तरह से इवॉल्व नहीं हुआ था, और बाद की जो परिस्थितियां किसान आंदोलन के समय की थी उसके कारण से। लेकिन आज अगर मुझसे एज ए राजनीति के पार्टी के चुनाव के प्रभारी के दृष्टिकोण से देखा जाए, मैंने आम आदमी पार्टी को अपने सामने खड़ा पाता हूँ, न कांग्रेस को पाता हूँ, न अकाली दल को पाता हूँ। मेरे सामने अगर कोई एक चीज़ बड़ी चुनौती है तो वो चुनौती है समय, बिकॉज आई एम रनिंग अगेंस्ट द टाइम। बाकी सबको काम करने के लिए बहुत सारा समय मिला होगा, मुझे तो सिर्फ 3 या 3.5 महीने का समय मिला है। ये समय की सीमितता मेरी चुनौती है। अगर यही परिस्थितियां आज से 3 साल पहले हुई होती और हमने उस दिन अगर प्रारंभ किया होता, या जिस दिन अकाली दल हमसे अलग हुआ था उसके बाद में अगर ये किसान आंदोलन के व्यवधान नहीं होते, शायद अभी आपको ये प्रश्न करने की आवश्यकता भी नहीं। एक और शिकावत जी ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ SC ਸਮਾਜ ਤੋਂ CM ਬਣਾਤਾ,
ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਬੀਜੇਪੀ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी जातिवादी राजनीति की बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय से सर्वहारा समाज, जो समाज का सबसे पीछे खड़ा हुआ तबका है, समाज की पंक्ति में सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके घर में रोशन करेंगे, उसको समृद्ध बनाएंगे, उसको बराबरी पर लाएंगे और जो भारत को सर्वशक्तिशाली संपन्न समृद्ध देश बनाने का लक्ष्य है उसको प्राप्त करेंगे। ये जनसंघ के ज़माने से प्रिंसिपल था, इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी बनी। पिछले 7 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अक्षर से इस सिद्धांत का पालन भी किया, न केवल पालन किया अपितु देश के सामने इस बात को स्पष्टता के साथ में रखा भी, दिखाया भी, दुनिया को दिखाया कि छोटे छोटे फैसलों से देश के सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। चाहे वो गैस का मुद्दा हो, चाहे वो आवास का मुद्दा हो, चाहे वो शौचालय का मुद्दा हो, चाहे बैंक अकाउंट का मुद्दा हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे हाईवे का मुद्दा हो, चाहे हाईवे का मुद्दा हो, चाहे वो गाँव में सड़क बनाने का मुद्दा हो, इन सब विषयों के माध्यम से हमने सामान्य मानवी के जीवन को छुआ है। और अब देश में अगर किसी एक आधार पर राजनीति होगी वो केवल और केवल विकास के आधार पर होगी। इसलिए जाति धर्म के आधार पर बांट करके राजनीति करने वाले लोग और उनकी राजनीतिक विधाएं अब पीछे छूट गए। ਤੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਫਿਰ मतलब देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा ऐसे प्रदेश में जहां हम पहली बार मुख्यधारा में आकर के चुनाव लड़ रहे हैं या एक लंबे अंतराल के बाद में उस प्रदेश में हम मुख्यमंत्री बना पाएंगे, सरकार बना पाएंगे, इस लक्ष्य के साथ में लड़ रहे हैं। मुझे एक भी उदाहरण बता दीजिए जहां भारतीय जनता पार्टी ने पहले मुख्यमंत्री तय किया हो। जब हम उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार बनाने के लिए 25 साल बाद में चुनाव लड़ रहे थे, तब आप में से किसी ने कल्पना की थी कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे? तब भी ऐसे ही प्रश्न किए गए थे। जब हम उत्तराखंड में सरकार बना रहे थे तब किसी ने कल्पना की थी कि जो है त्रिवेंद्र रावत हमारे मुख्यमंत्री होंगे। जब हम शिवसेना से अलग होकर के महाराष्ट्र में पहली बार अकेले चुनाव लड़ रहे थे तब क्या किसी ने कल्पना की थी ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿਖਾਓ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਐਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ लड़ी ਜਾਂਦੀ है। मुझे लगता है कि सब जगह इसी तरह की बातचीत होती है, सब तरह इसी तरह के प्रश्न किए जाते थे। अभी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जो है वो नरेंद्र मोदी का चेहरा है। हम नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਰਦਾਰ ਚਿਹਰਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? पंजाब का बेटा पंजाब का मुख्यमंत्री बनेगा। ਫਿਰ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਸਸਪੈਂਸ आम आदमी पार्टी की तरह है कि दिल्ली में बैठे हुए लोगों की लार नहीं टपकेगी और न टपकेगी न करेंगे। पंजाब का बेटा ही पंजाब का आने वाला मुख्यमंत्री होगा और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी जो आएगा वो पंजाब का ही बेटा। ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਟੇ 3-4 ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਸਪੈਂਸ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ प्रकाश समझिए। देखिए, मैं इसके लिए इनकार भी नहीं कर सकता, मैं इनकार भी नहीं कर सकता और ऐसा भी नहीं कहूँगा कि यही होने वाला है। पर जैसा मैंने कहा कि पंजाब का बेटा ही पंजाब का मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि सोम प्रकाश जी पंजाब के बेटे हैं, तो इसलिए इन संभावनाओं से इनकार। देखिए, राजनीति असीम संभावनाओं का क्षेत्र है, इसलिए किसी भी तरह की संभावना से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। पर एक बात तय है जो मैं फिर कहूंगा और जिम्मेदारी के साथ में कहूंगा कि पंजाब का बेटा ही पंजाब ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਸਪੈਂਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ 'ਚ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਧੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਦਲ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲ ਸਾਡੇ ਬਜਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। फिर तो कनक ਝੋਨਾ और फिर तो पानी ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ। ਕਿੰਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? देखिए, निश्चित रूप से पंजाब के हालात चिंताजनक बन रहे हैं। जिस तरह से ज़मीन का पानी कम हो रहा है और पंजाब की एग्रीकल्चर का, शायद बाहर से बैठे हुए लोग इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि पंजाब जैसा प्रदेश, 5 नदियों का प्रदेश, सबसे ज़्यादा जो है वो कनाल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला प्रदेश का भी लगभग 65% से ज़्यादा एग्रीकल्चर ग्राउंड वाटर डिपेंडेंट है, ज़मीन के पानी पर डिपेंडेंट है। और जिस तरह से दोहन हो रहा है उसके कारण से पंजाब देश के सबसे ज़्यादा भूगर्भ के पानी, ज़मीन के पानी के लिए चुनौती वाला प्रदेश बन रहा है। निश्चित रूप से पंजाब की सरकारों को इस विषय में सोचना ही पड़ेगा। कृषि और
पानी, दोनों ही हमारे संविधान की व्यवस्था के अनुरूप राज्य का विषय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम निश्चित रूप से इसमें बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ में काम करेंगे। जमीन के पानी का पुनर्भरण कैसे हो, उसके लिए भी व्यापक योजना बना करके जो देश की सरकार की वर्तमान योजनाएं हैं उनको साथ जोड़ करके काम करेंगे। आज अटल भूजल योजना 7 प्रदेशों में काम कर रही है। दुर्भाग्य से पंजाब की सरकार के प्रिपेयर्डनेस के और विलिंगनेस की चिट्ठी नहीं जारी करने के कारण से दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं मैं कि पंजाब उस योजना में नहीं सम्मिलित हो पाया। लेकिन हमारी राज्य सरकार बनेगी, हम राज्य की को है विलिंगनेस दे करके उस योजना के साथ सम्मिलित करेंगे और इसके साथ साथ में जमीन के पानी के पुनर्भरण के साथ साथ में पानी का मिनिमम उपयोग करते हुए हम किस तरह से एग्रीकल्चर कर सकें। पर ड्रॉप मोर क्रॉप का जो प्रिंसिपल, जो फिलॉसफी और जो योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, देखिए 1 किलो चावल पैदा करने में एवरेज भारत में पानी की रिक्वायरमेंट लगभग 5600 लीटर होती है जी। जबकि चीन और अन्य देश उतना ही चावल जो है वो 350 लीटर 350 लीटर पानी पे उगाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में वो तकनीकी नहीं है, वो सीड्स नहीं है, वो डिसेमिनेशन नहीं हुआ है क्योंकि एग्रीकल्चर राज्य का विषय है और राज्य ने उस पर गंभीरता से काम नहीं किया। हमारी सरकार बनेगी तब हम पानी बचाने वाली फसलों का यहाँ तेज गति से कैसे डिसेमिनेशन हो सके, पानी बचाने वाली वैरायटीज का कनक की और पानी बचाने वाली जो है पैडी की वैरायटीज, धान की वैरायटीज का हम कैसे डिसेमिनेशन कर सकें। देश की सरकार के एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स के साथ में पैरिटी से ला करके हम किस तरह से उन फसलों को ज़्यादा प्रोत्साहित कर सकें और इसके अतिरिक्त भी अन्य नीतियां बना करके कैसे हम पानी को बचा सकें मैक्सिमम। डाइवर्सिफिकेशन पर ऐसी पॉलिसीज बना करके किसान का 1 रुपए का भी नुकसान हुए बिना उसको डाइवर्सिफिकेशन की अपॉर्चुनिटीज मिले, उस दिशा में पॉलिसीज बना करके उस पर काम करेंगे। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो पंजाब के कृषि का भविष्य जो है, आज जिस तरह से पानी जमीन में जाने से अंधकार में दिखाई दे रहा है, एक नया सवेरा और नया सूरज उस दिशा में उगेगा। बिल्कुल साहब, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਯੂ ਟਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ इस फैसले को वापस लिया गया? क्योंकि मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता के साथ में कहा था कि मैंने देश के लिए कानून, मैंने किसान के लिए कानून बनाया था और देश के लिए वापस लिया है। हमने हमेशा कहा कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है, दल दूसरे नंबर पे और व्यक्ति सबसे अंत में है। मुझे लगता है इससे बड़ा प्रमाण की उसमें कोई आवश्यकता नहीं होगी। शेखावत जी, मैं तुहानू पूछना चाहना भी राजसी पार्टियां वालों चोणां आ गईयां, मुफ्त ਦੇ ਬੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ 'ਚ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, 1000 ਰੁਪਏ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ? ਮੁਫਤੀ राजनीति बारे भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किस हद तक होना चाहिए? देखिए पंजाब, मैं ये मानता हूँ और मैं इसके लिए पंजाब को सैल्यूट करता हूँ और पंजाबियों को भी सैल्यूट करता हूँ। पंजाब स्वाभिमानियों का प्रदेश है। बिल्कुल। सदियों से पंजाब का स्वाभिमान का इतिहास रहा है। उन्होंने सिर कटा दिए लेकिन सिर झुकाना मंजूर नहीं किया, अपने बच्चों को दीवार में चुनवा दिया लेकिन जो है सिर झुकाना मंजूर नहीं किया। उस मजबूत पंजाब को मजबूत बनाने के बजाय मजबूर बनाने की साजिश क्यों की जा रही है? क्यों नहीं पंजाब में इस तरह के हालात पैदा किए जाते कि पंजाब को इन फ्रीबीज की आवश्यकता न पड़े? उस पंजाब से जिसकी कल्पना मात्र से देश और दुनिया का आदमी ये खुशहाली की उसके मन में एक ऐसा आता था, चित्रण आता था, एक पिक्चर पोर्ट्रे होता था, गिद्दा हो रहा है, भंगड़ा हो रहा है, धूम धड़ाका हो रहा है, खुशहाली है, रंग है, संस्कृति है। उस पंजाब का स्मरण करने पर आज जो है वो बेरोजगार पंजाब, आज नशे से जूझता हुआ पंजाब, आज भ्रष्टाचार माफिया इन सबसे जूझता हुआ पंजाब, ये चित्रण आता है। आज देश का सबसे ज्यादा पर कैपिटा कर्जे वाला पंजाब का चित्रण आता है। कौन जिम्मेदार है उसका? और क्या इन सब संकटों का समाधान इस तरह से फ्रीबीज देकर के किया जा सकता है? वो पंजाब जो आज जीडीपी ग्रोथ की दृष्टि से देश में अंतिम लाइन जो है, लास्ट स्टेट मणिपुर है, उससे जस्ट ऊपर है, 33वें नंबर पर है। बिल्कुल। वो पंजाब क्या इस तरह की फ्रीबीज को बर्दाश्त कर पाएगा? वो पंजाब जिसकी टोटल जीएसडीपी का कलेक्शन का 30% से ज्यादा हिस्सा, 33% 35% हिस्सा जो है वो डेब्ट सर्विसिंग में जा रहा है, क्या वो पंजाब इसको बर्दाश्त कर पाएगा? इस तरह के फैसले, इस तरह के झूठ बोलने वाले लोग
एक बार मैं चाहता हूं कि आप दिल्ली में जाकर के अजीत समाचार और वेब पोर्टल दिल्ली में जाकर के हकीकत को देखें कि दिल्ली में क्या उन्होंने जो कुछ भी इस तरह की घोषणाएं की थी, उन थोती घोषणाओं को पूरा किया है। केवल चुनाव के लिए इस तरह की घोषणाएं करके और इस तरह की घोषणाओं के माध्यम से पंजाब के भविष्य को गिरवी रखने वाले लोग, मुझे लगता है कि पंजाब के लोग बहुत बुद्धिमान हैं, वो ऐसे झांसे में और ऐसे झूठे दिलासे में नहीं आने वाले। ਇੱਕ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखिए, मैं एक राजनीतिक क्षेत्र का आदमी होने के नाते एक बात कह सकता हूँ, बहुत वर्षों से मुझे इस क्षेत्र में काम करने का मौका मिला है। किसी भी सरकार का पॉपुलैरिटी ग्राफ इतनी तेजी से गिरे, 2 महीने में सरकार धरातल पर आ जाए, अर्श से फर्श पे आ जाए, ये मैंने पहली बार देखा है। और मुझे लगता है कि अब पंजाब की वर्तमान सरकार पे तो कमेंट करने के लिए भी कुछ शब्द नहीं बचे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सरकार का मुखिया और सरकार चलाने वाली पार्टी का मुखिया दोनों 2 दिशाओं में, उत्तर दक्षिण ध्रुव होकर के बात कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है ट्विटर वॉर खेल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के स्टेटमेंट्स को कंडेम करने के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पंजाब में निरंतर बेअदबी की घटनाएं हो रही, पंजाब में निरंतर जो है मंदिरों से मूर्तियां चोरी हो रही हैं, तोड़ी जा रही हैं। पंजाब में जो है सेंटर की वार्निंग के बाद में भी सीरियसनेस की कमी के कारण से, आपसी लड़ाई के कारण से लुधियाना जैसा बम ब्लास्ट हो जाता है। इन लोगों की जिम्मेदारी जो है, इससे ये बच भी नहीं सकते और भाग भी नहीं सकते। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ, ਓਵਰਆਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता तो तब होती है जब कहीं माइनॉरिटी होती है। भारतीय जनता पार्टी अब के बार पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है, इसलिए ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न अपने आप में खड़ा नहीं हो सकता। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਔਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ? देखिए, ये गठजोड़ की एकमात्र धुरी है, राष्ट्रीय सुरक्षा, पंजाब का विकास और पंजाब का भविष्य। जब लक्ष्य एक हो और भाव पवित्र हो, तब शर्तों की आवश्यकता नहीं पड़ती। न कोई शर्त है और न कोई किसी तरह का लिखित दस्तावेज है। केवल और केवल पंजाब के भविष्य के लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। इस लक्ष्य के साथ में, इस पवित्र भाव के साथ हमने हाथ मिलाए हैं, हाथ जोड़े हैं, हाथ बांधे हैं, हम साथ खड़े हुए हैं, और मैं ये कह सकता हूं कि ये पवित्र गठबंधन अब की बार पंजाब का भविष्य तय करने वाला है। बिल्कुल शेखावत साहब, एक आखिरी सवाल, बीएसएफ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਕਿੰਜ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ सरकार दोष लगाती है कि सेंटर ने काफी अधिकार उधर खोले नहीं। देखिए, मैं एक बात आपसे, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, और एक बात के लिए आपको मैं आपकी बात से जो असहमति व्यक्त करना चाहता हूँ, वो ये है कि BSF सुरक्षा करने में कामयाब नहीं हुई, ये कहना अपने आप में बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए तमाम विपरीत परिस्थितियों में, चाहे वो बर्फ़ की वादियाँ हो, चाहे बर्फीले तूफ़ान हो, चाहे आंधी बरसात हो, और चाहे गर्म लू के थपेड़े हों राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर पे, उसके ऊपर बॉर्डर पर जो सिपाही खड़ा रहता है, उसका अपमान इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये कहना है कि BSF, ये जो पॉलिटिकल पार्टियाँ इस तरह की बातें करती है, मुझे लगता है कि उससे सैनिक के प्रति उसके मन में सम्मान नहीं है। और इस तरह की भाषा बोलने वाले को कम से कम पंजाब जैसा प्रदेश, जिसके हर घर ने, कम से कम हर घर ने अपना बेटा फौज को दिया है, हर गांव ने अपना एक न एक बेटा जो है देश की सीमा के लिए शहीद किया है, उसका, उस धरती का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। और जहाँ तक प्रश्न है सीमा क्षेत्र के, सीमा के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का, जब 15 किलोमीटर में BSF काम करते थे, तब भी BSF को किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं था, 50 में भी नहीं होने वाला है। आज हम सब जानते हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के कारण से, ड्रोन्स के माध्यम से जो है ड्रॉपिंग्स बढ़ रही है, हथियारों की बढ़ रही है, नशीले पदार्थों की बढ़ रही है, एंटी इंडिया जो जितने भी तरह के गैजेट्स उपयोग किए जा रहे हैं, उनकी बढ़ रही है। मुख्यमंत्री रहते हुए अमरिंदर सिंह साहब ने ऐसे फोटो दिखा करके सबूत दिए थे
तब क्या ये जरूरी नहीं है कि देश की सुरक्षा के लिए हम उस कार्यक्षेत्र को बढ़ाएं? और वो केवल एक ही जगह नहीं था ना, वो सभी प्रदेशों के लिए लागू हुआ है। ये दर्द पंजाब में इन पॉलिटिकल पार्टियों को ही क्यों हुआ? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों को पॉलिटिसाइज करने की कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है। जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है तब ये प्रश्न खड़े करते हैं, जब देश की सुरक्षा के लिए रफाल खरीदा जाता है तो ये प्रश्न खड़े करते हैं, जब देश के सैनिक जो है कोई अचीवमेंट करते हैं तब ये प्रश्न खड़े करते हैं, जब देश विरोधी ताकतों को बटाला हाउस एनकाउंटर में मारा जाता है तब भी ये आंसू बहाते हैं और प्रश्न खड़े करते हैं। ये कांग्रेस के लोग, इनके लिए राजनीति सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि नहीं है, और इसी कारण से हाशिए पर सिमटते हुए हाशिए पर आ गए और अब अपने अस्तित्व का संघर्ष कर रहे हैं। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਖਰੀ ਕੀ संदेश देना चाहूंगे? देखिए, मैं आग्रह करूंगा आपके सब दर्शकों को जी कि खुशहाल पंजाब के लिए, समृद्ध पंजाब के लिए, रोजगार युक्त पंजाब के लिए और भविष्य के पंजाब के लिए, एक नया पंजाब बनाने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करें और कौन ये सब दे सकता है इस सब के ऊपर विचार करें और तभी अपना मतदान करें। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਟੱਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।